Turn your Bible to the Gospel of Luke chapter 2. इस समय हम अपने बाइबल को लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 2 में खोलेंगे। Luke chapter 2. और लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 2। Our services are getting longer and longer, और हमारे जो सर्विस है बहुत और ज़्यादा लंबी लंबी हो रहे हैं, but our church is growing and growing. लेकिन हमारी जो कलीसिया है वो बहुत ही बढ़ रहा है। Amen. आमीन। Luke chapter 2. और लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 2। The greatest joke yesterday I saw on Facebook. और एक सबसे अद्भुत जोक मैंने कल फेसबुक में देखा। There's a church that talks about how they do healing and great miracles happens in their churches. और जो आजकल कलीसिया कह रहे कि कैसे चंगाई वगैरह होती है, कैसे लोग अन्य अन्य चीज़ों को करते हैं कलीसियाओं में। And during the corona, nobody went to church. They all closed their doors. और कोरोना के समय में लोगों ने कोई भी कलीसिया को नहीं गया, सभी लोगों ने द्वार को बंद करके रखा। Now yesterday there was an advertisement from that church. और उस कलीसिया से कल एक एडवर्टाइजमेंट था। And it was showing how they were sanitizing the whole building and the chairs. और लोग दिखा रहे थे कि कैसे उन लोग पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे थे और चेयर्स वगैरह को भी। Now sadly these people claim that there's a lot of healing that takes place in their church. और लोग कहते हैं कि उन लोगों के कलीसियाओं में बहुत ही चमत्कार होती है। I don't know how can you do healing in the name of Jesus and use sanitizer in the church building. मुझे नहीं पता कि उन लोग कैसे यीशु के नाम में चंगाई करते हैं लेकिन सैनिटाइज करते हैं पूरे घर को। It really doesn't make sense to me. ये मेरे लिए कोई समझ नहीं बनाता। Well, you can say you are taking care of the people by sanitizing the chairs and the hall. आप कह सकते हैं कि हाँ सैनिटाइज करने के द्वारा मैं लोगों का परवाह करता हूँ। And then you say in the name of Jesus you are healing people. और उन लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से उन लोग चंगाई कर रहे हैं। God is a healer. परमेश्वर चंगाई करने वाला प्रभु है। And if anybody had to die of corona, our church should be dying first. अगर कोरोना से कोई किसी को मरना था तो हमारा कलीसिया को सबसे पहले मरना था। But by God's grace, none of us got corona here. लेकिन प्रभु की करुणा की वजह से हम किसी को कोरोना नहीं हुआ। And nobody died here. और कोई भी यहाँ पर नहीं मरा। Everybody is alive here. सभी लोग यहाँ पर जीवित हैं। And our church building was always open here. और हमारे कलीसिया के जो घर थे हमेशा खुला थे। And the service never stopped here. और हमारा सर्विस कभी भी बंद नहीं हुआ। Hallelujah. Hallelujah. That's because the God that we worship is a God of the Bible. क्योंकि जो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो बाइबल की परमेश्वर है। We are not worshiping a God of imagination. और हम समझ की परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। The Jesus that I preach is not the Jesus of imagination. और जो यीशु को मैं प्रचार करता हूँ वो समझ की यीशु मसीह नहीं है। Now I'm not denying that there is no corona. और मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कोरोना नहीं है बोल के। I am absolutely in agreement that there is some kind of viruses that is going around. हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ प्रकार के ऐसा वायरस है अभी जो फैल रही है। And I absolutely know that there are some people who are badly affected by it. और मुझे पता है कि इन सब वायरस से लोगों को इफेक्ट हुआ है। But that is happening every year. लेकिन ये हर एक साल को होते रहते हैं। Recently there was a study that came out. और कुछ समय कुछ ऐसा चीज बाहर निकल कर आए हैं। And in that study they were trying to find the virus of corona in the blood samples that they have been collecting for years. और उन लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना की जो वायरस है खून में पाया गया है और हमेशा उन लोग कलेक्ट करते आए हैं हर एक सालों से। And what they found in America in John Hopkins survey, that's the major right now in the World Health Organization, they found out even 2 years ago corona was existing and people were still getting affected. और उन लोग ने पाया अमेरिका में जब उन लोग टेस्ट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि 2 साल पहले भी कोरोना हुआ था और लोगों को कोरोना हो रहा था। But people did not know because the media was not knowing and no people believed in the media. लेकिन लोगों को नहीं मालूम था क्योंकि मीडिया ने इसको इन सब चीजों को नहीं पता, उन लोगों को भी नहीं पता था तभी। You see, when you think about it, you get problem. जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो उस समस्याओं को आपको मिल जाएंगे। 2 years ago, it came in the report that 2 years ago they found the corona virus in the blood samples. और 2 साल पहले उन लोगों को पता लगा कि जो कोरोना वायरस है वो खून में पाया गया है। So simply corona simply means it's a new name for cold, fever, headache and pneumonia. और कोरोना का जो सिंपल एक नाम है वो है सिर दर्द, जुकाम, खांसी और बुखार। And this is happening every year. और ये हर एक साल को हो रहे हैं। Every year everybody goes cold. हर एक साल हर किसी को जुकाम हो जाता है। Everybody gets headache. और सबों को सिर दुखता है। Everybody gets fever. और सबों को बुखार होता है। Is there anybody who doesn't get cold and fever every year? क्या ऐसा कोई यहाँ पर है जो हर साल को किसी को बुखार नहीं होता है?
We should be giving Nobel Prize for that. और उसके लिए हमें एक प्राइज मिलना चाहिए। God allows cold in our body for a purpose. और परमेश्वर हमारे शरीर में ठंडी को अलाउ करता है, अनुमति देता है। Cold is actually not a sickness, but it is a servicing center in your body. ये जो जुकाम है वो हम एक बीमार नहीं, लेकिन हमारे शरीर में एक सर्विसिंग सेंटर जैसा है। When cold comes, God is taking out the germs out of your body. जब जुकाम आता है तब हमारे शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है परमेश्वर। When we get cough, जब हम खांसी हो जाते हैं, we immediately think, oh, that is a sickness. और हम सोचते हैं कि अरे वो एक बीमार है। No, that is actually not a sickness. नहीं, वो एक बीमार नहीं है। That is something that God made into our body, that our body knows how to function when the germs comes into our body. क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया ताकि जब हमारे अंदर वो जर्म्स वगैरह आएंगे ताकि हम जान सके किस प्रकार से हमें खुद को वो फंक्शन करना होता So है। when you are coughing, जब आप खांस रहे हैं तभी it simply means you have germs inside you that is causing some problem. इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ जर्म्स वगैरह है, And God gave you that cough to throw that germs out of you. और परमेश्वर ने आपको खांसी को दिया था कि आप खांस के उस गंदगी को निकाल सके बाहर। And when your body becomes hot and you get fever, जब आपके शरीर गर्म हो जाता है और आपको बुखार हो जाता है, God uses that fever to kill the germs within your body. और परमेश्वर उस बुखार को आपके शरीर में डाल देता था कि वो अंदर जो जर्म्स है उसको मार सके। But the pharmaceutical company knows that you are ignorant of these things. लेकिन फार्मेसी लोगों को पता है कि आप इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं मालूम है, And they want to make money out of you, and the doctors want to make money out of you. और आपसे और डॉक्टर लोग उन लोग क्या करना चाहते हैं, आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, And they say many things, and you go and buy everything. और उन लोग बहुत सारे चीजों को आपसे कहेंगे और आप बहुत सारे दवाओं को खरीदते Now, हैं। I'm not saying you should not take medicine, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दवा नहीं लेना चाहिए, but too quick, too soon is actually you are stopping when God is using those things to heal your own body and your sickness. लेकिन बहुत जल्द लेना गलत है, क्योंकि बहुत सारे समय परमेश्वर ऐसे प्राकृतिक तरीके से आपको दे देता कि आपके शरीर में सब ठीक ठाक हो सके। God uses the cough to throw your germs out of your और body. परमेश्वर खांसी को देता ताकि आपके अंदर से गंदगी को ताकि आप बाहर निकाल सको, God uses that fever to kill that germs within your body. और परमेश्वर आपको बुखार को देता ताकि आपके अंदर की गंदगी को आप बाहर निकाल सको। And when that butter comes out of your nose and your throat, it is getting all the germs out of your body. जब आपके नाक से बटर वगैरह आते हैं तो सारे गंदगी आपके शरीर से निकल जाता है, God is using that to heal your own body in that manner. और परमेश्वर उसको अनुमति दे रहा था कि आपके शरीर के अंदर ताकि सब सही हो सके। But we like to take chemicals all the time. लेकिन हम हमेशा केमिकल हम लेना चाहते हैं And हमेशा, then we hurt our body. और हम अपने शरीर को हम दर्द दे देते हैं। And then the media helps in feeding your fear. और मीडिया के लोग आपको डर को आपको खिलाते हैं। And when you watch too much and read too much of what the lies of the media, और मीडिया की जो झूठ चीजों को अगर आप ज्यादा देखेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, you get fear, and the fear makes you fever. और आप डर जाते हैं, उस समय डर की वजह से आपको बुखार हो जाता है, And the fear brings sickness. और डर की वजह से आपके अंदर बीमार आ जाता है। That's why the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के जैसे तुम प्रभु के हाथों में समर्पित करो, पवित्र जैसे और परमेश्वर की इच्छाओं के जैसे। The Bible says, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. और बाइबल हमें बताते है कि तुम इस संसार के स्वरूप ना बनो, लेकिन अपने आप को तुम बदल और मन को तुम बदल सको। And so God wants us to trust in His word, not on the TV and your newspaper. परमेश्वर चाहता था कि हम अपने भरोसा को वचन में रखें, न्यूज़ में नहीं और समाचार में नहीं। I don't worship and preach the God of Jesus of the imagination. और इमेजिनेशन की परमेश्वर की मैं प्रचार नहीं करता हूँ। I preach the Jesus Christ of the Bible. मैं बाइबल के यीशु के बारे में मैं प्रचार करता हूँ, He is the Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। I don't go around saying that there is healing in our church and then sanitize your building. मैं बाहर जाकर ये नहीं कहता हूँ कि यीशु के नाम में चंगाई और मैं पूरे घर को सैनिटाइज नहीं करता हूँ। We believe the word of God by faith. हम वचन को विश्वास से हम भरोसा करते हैं, We walk by faith. हम विश्वास से हम चलते हैं, And our faith is of the faith of the word, of the fact of the word of और हमारा God. जो विश्वास है बाइबल की सच्चाई की ओर से है। And this morning we are going to talk about that God who became man and came into this world. और हम उस परमेश्वर के
बारे में हम आज सीखेंगे जो परमेश्वर ने मनुष्य बनाए संसार में आया। When the world talks about Christmas, जब लोग क्रिसमस के बारे में बातचीत करते हैं, the world is not talking about some Baal or some other gods. और संसार के लोग बाल भगवान के बारे में उन लोग बात नहीं करते उस Most समय। of the worldly people don't even know who the Baal is. और संसार के बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि बाल कौन है। But some of the Christians get something from the internet and they put something that is not in the word of God and demonize Christians who celebrate the Lord Jesus Christ. और बहुत सारे लोग जो मसीह लोग अपने को मसीह कहते हैं, उन लोग इंटरनेट से उन लोग कुछ मिल जाते हैं और जो बाइबल में जो नहीं है उन लोग को उन लोग बताते हैं। The Bible doesn't say 25th December is Baal's birthday. बाइबल नहीं बताते कि 25 तारीख को बाल की जन्मदिन है Nor के, does the Bible says that 25th December is Jesus' birthday. और या फिर यीशु का जन्मदिन भी 25 तारीख को है कि नहीं बताती है। Now the people ask the question, did Jesus ever command you to celebrate Jesus' birthday? और लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या कभी यीशु ने तुम्हें आज्ञा दिया था कि तुम 25 तारीख को सेलिब्रेट कर सको यीशु के जन्मदिन को? When was the last day you went around telling people, see, I'm somebody, you celebrate my birthday? ऐसा कौन सा दिन था, आखिरी दिन, जो आप जाकर कहने लगे कि आप मेरी बर्थडे को आप तुम पालन करो? It will be shame for me to go around and asking you, hey, why don't you celebrate my birthday, please? ये शर्मनाक की बात होगी कि आप जाकर क्यों मेरे बर्थडे तुम सेलिब्रेट नहीं करते हो? You know, I'm pastor, no, celebrate my birthday, please. मैं पास्टर हूँ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। It is a shame for me to go around. ये एक शर्मनाक की बात है बाहर जाकर But बताना। if people loves me, अगर लोग मुझसे प्यार करते हैं they will wish me, और उन लोग मुझे विश करेंगे, they will send me a card, उन लोग मेरे लिए कार्ड भेजेंगे, they will send me a message, उन लोग मैसेज भेजेंगे मुझे, or they'll bring a gift for me और मेरे लिए गिफ्ट को लेके आएंगे उन लोग, because they love me. कि उन लोग मुझसे प्यार करते हैं। I don't need a command from Jesus for me to celebrate his birthday. और मुझे यीशु की ओर से एक कमांड नहीं चाहिए था कि मैं उसकी आराधना मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करूं। I celebrate the birth of Christ because I love the Lord Jesus मैं Christ. यीशु की बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूं, And I want the whole world to know about my Lord Jesus. और मैं चाहता हूं कि ताकि मेरे यीशु के बारे में पूरे संसार जान सके। I don't mind to celebrate tomorrow. और कल को भी मैं सेलिब्रेट करना मैं कुछ वो माइंड नहीं करता हूं। I don't mind to celebrate the 12 months of a year. और हर महीने को मैं सेलिब्रेट करना भी मैं माइंड नहीं करता हूं। But the world thinks on 25th December that it's the birthday of Jesus Christ. लेकिन पूरे संसार के लोगों को लगता है कि 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन है, Whether it's an unbeliever or a believer. चाहे विश्वासी हो या फिर अविश्वासी हो। Every unbeliever thinks that December 25th is the birthday of Jesus Christ. सभी अविश्वासी लोग समझते हैं कि 25 तारीख को यीशु मसीह का बर्थडे है के। So why should I not use that opportunity? क्यों मैं उस मौका का फायदा ना उठाऊं? Why should you not use that opportunity to proclaim the name of the Lord Jesus Christ? क्यों आप उस समय का मौका का फायदा उठाकर यीशु मसीह को ना बता सकें? Whatever you do, you need to do it for the glory of God, the Bible जो कुछ says. भी आप करते हैं आपको प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। If you're celebrating, celebrate it for the glory of the Lord अगर आप Jesus. सेलिब्रेट कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आप करिए। If you're not celebrating, अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, that doesn't mean you are not good. इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, It simply means you're not celebrating for the glory of God. इसका मतलब ये है कि आप प्रभु की महिमा के लिए आप उत्सव को नहीं मना रहे So हैं। both are right. सो दोनों ही सही है, Nobody is wrong here. कोई भी गलत नहीं है यहाँ When पर। you read Romans chapter 14, जब रोमियो के पुस्तक 14 को आप पढ़ेंगे, the Bible speaks about it. बाइबल उसके बारे में ये कह रहा है, Those who are keeping the day for the Lord, they're doing it for the Lord. जो प्रभु के दिन के लिए उन लोग रखते हैं उन लोग प्रभु की महिमा के लिए उन लोग रखते हैं। Those who are not doing it for the Lord, they're not doing it for the Lord. जो लोग नहीं रखते हैं उन लोग प्रभु की महिमा के लिए नहीं रखते हैं। And let each one be very much convinced in his mind. और सभी लोग अपने मन में वही स्थिर करिए। And so, let's not demonize the people who do not, and let's not demonize the people who do. और जो लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते उन लोगों के हमें कुछ उन लोगों को दबाव नहीं देना चाहिए। If they are not against the Lord Jesus Christ, then they are for us, Jesus said. और उन लोग यीशु के खिलाफ नहीं तो उन लोग हमारे लिए हैं, यीशु वही बता रहे हैं And हमें। so we need to be preaching the gospel more in this month than और ever. ये महीने में हमें सबसे ज्यादा हमें शुभ समाचार को प्रचार करना चाहिए। This is the greatest month that we have an opportunity to preach the gospel to everybody and everywhere. और ऐसा महीना है जहां पर हमें बहुत ही मौका मिलते हैं तब वचन को प्रचार करने के लिए। So the Bible says in Luke chapter 2, और लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 2 में बाइबल बताती है, they had to go and register their name for taxes. और उन लोगों को टैक्सेस के लिए अपने नाम को उन लोगों को लिखित करना है। And so in verse number 4, और वचन 4 में verse number 3 says, and all went to be taxed, everyone into his own city. लिखा है कि सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। Now Mary is pregnant.
और मरियम यहाँ पर वो पेट से है She is 9 month old, 9 month pregnant right now. और 9 महीने से वो पेट से है Her stomach is huge, right? और उसकी जो पेट है वो बहुत ही बड़ा है The baby may be huge also. शायद जो बच्चा है वो भी शायद बहुत ही बड़ा है उस She समय is tired. और वो थक चुकी है You cannot walk for a long time when you're pregnant. जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आप बहुत समय तक आप चल नहीं सकती है And there is a lot of uncomfortableness when you're pregnant. और जब आप प्रेग्नेंट बन जाती है तो उस समय बहुत से अनकंफर्टेबल चीजें होती है But they had to obey the government. लेकिन उन लोगों को सरकार को उन लोगों को पालन करना होता And है so they went to be taxed, everyone into his own city. और अपने अपने नगरों में उन लोगों ने लिखवाने के लिए उन लोग गए The Bible says in verse number 4. और वचन 4 में बाइबल बताती है And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. लिखा है यह तो यूसुफ भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया You see, there is something God is doing it to bring everything into fulfillment of the prophecy of the Old और Testament. भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर यहाँ पे कुछ चीजों को कर रहे हैं वापस से दोहरा रहे हैं Mary is pregnant in Galilee. मरियम यहाँ पर गलीले में वो प्रेग्नेंट है Joseph is in Galilee with Mary. और यीशु मरियम के साथ यहाँ पर गलीले पे But है there is a prophecy in Micah chapter 5 verse 2. और माइका चैप्टर 5 में वहां पर एक भविष्यवाणी है There is a prophecy in Isaiah chapter 7 verse 14. और यशाया में भी एक भविष्यवाणी है There is the prophecy is that there is a savior who will be born in the city of Bethlehem. और ऐसा भविष्यवाणी ऐसा उद्धारकर्ता जन्म लेंगे और उस नगर में जन्म लेंगे And so Joseph was not knowing very much about all this prophecy. और यीशु को इस भविष्यवाणी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था We saw that last week he wanted to put away Mary. और पिछले हफ्ते को हमने देखा कि यूसुफ उसको छोड़ना चाहता था But then in the angel of the Lord came and told Joseph, hey, that child is of God. और यह स्वर्गदूत आकर यूसुफ से कहता है कि वो जो बच्चा है वो परमेश्वर की ओर से है So Joseph says, okay, Lord, I obey you. और यीशु कहता है कि हाँ प्रभु मैं मानता हूँ ठीक है आपकी आज्ञा को And पालन करूंगा now the fulfillment has to be taken. अभी जो भविष्यवाणी वो पूरा होना चाहिए अभी The baby cannot be born in Galilee. और गलील में बच्चा जन्म नहीं हो सकता The baby has to be born in Bethlehem. और जो बच्चा है उसको बेतलहम में जन्म लेना है And so God uses the situation. और परमेश्वर इस परिस्थिति को इस समय इस्तेमाल करता है And so Joseph, Mary gets out of Galilee and goes to Bethlehem, the city of David. यहाँ पर यूसुफ और मरियम गलील से उठकर उन लोग बेतलहम को चले जाते हैं Verse number 5. और वचन 5 में To be taxed with Mary, his espoused wife, and being great with child. कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए So she is totally ripe now. She is about to be delivering the child any moment. और कुछ कौन से भी समय में वो बच्चे को जन्म देने वाली थी And they had to go to Bethlehem. और उन लोगों को वापस से बेतलहम को जाना था Now, the government may say, you have to come, but God is using this for the fulfillment of the scripture. शायद सरकार कहेंगे कि आपको आना है लेकिन परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए वो इस समय को वो इस्तेमाल कर रहे हैं Because if this baby is born in Galilee, he is not the savior. अगर जो बच्चा है वो अगर गली में जन्म लेंगे वो उद्धारकर्ता नहीं होंगे The baby has to be born in Bethlehem to fulfill the scripture, so that we know that he is the savior. और संतान को बेतलहम में जन्म लेने ताकि हम जान सके कि वो उद्धारकर्ता है And so they travel to Bethlehem. और उन लोग वापस से बेतलहम को चले जाते हैं Verse number 5, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with a child. Verse number 6 says, and so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. और लिखा है उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए I think it was last year, we went to visit some cultic group in Panjim. और पिछले साल को हमने कुछ कल्टिक ग्रुप को हम विजिट करने के लिए गए Now the cultic groups are those who say they believe in Jesus, but they believe a Jesus outside the Bible. और उन लोग कहते हैं कि उन लोग यीशु को विश्वास करते हैं लेकिन बाइबल के बाहर उन लोग विश्वास करते They हैं believe a false Jesus. उन लोग गलत यीशु को विश्वास करते हैं So we went to talk to him. I took the Bible college student and we went there and we spoke, debated with them for 6 days. और मैंने बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर वहां पर तर्क वितर्क करने के लिए वहां पर गए So they were telling us that Jesus is in South Korea right now. और उन लोग कह रहे कि यीशु मसीह इस समय साउथ कोरिया में है And so few questions I asked. और कुछ प्रश्नों को मैंने पूछा Was he born of a virgin? क्या वो कुंवारी के द्वारा जन्म लिया He said no. उसने कहा नहीं What happened to his father? उसका पिताजी को क्या हुआ He died. वो मर गया What happened to his mother? उसकी माँ को क्या हुआ He died.
वो भी मर गई, She died. वो भी मर गई। And what is happening with that Jesus now? और यीशु को क्या हो रहा है अभी? No, he also died. Now his wife is the Holy Spirit in South Korea. नहीं नहीं, यीशु भी मर गया, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो साउथ कोरिया में इस समय है। Now it's a big religion in South Korea. और ये बहुत ही बड़ा धर्म है इस समय They साउथ call कोरिया it में। that World Mission Church, something like that. और कुछ वर्ल्ड मिशन सोसाइटी कुछ तो कहते हैं उसका नाम से। So I asked him, if Jesus is in South Korea, why are you staying here still? तो मैंने पूछा, अगर यीशु मसीह साउथ कोरिया में, तो यहाँ पर तुम लोग क्यों रह रहे हो? Tell me where is he so I can go and stay with him in South तो Korea. मुझे बताओ कि वो कहाँ पर इस समय, ताकि मैं साउथ कोरिया में जाकर मिल सकूं। But he doesn't want to tell me exactly where, all about his Jesus in South Korea. और वो नहीं बताना चाह रहे थे अपने यीशु के बारे में साउथ कोरिया में कहाँ पर When है। you try to listen to men and women who talk outside the Bible of imagination, they're always wrong. जब आप ऐसे स्त्री और पुरुषों को सुनेंगे जो बाइबल से बाहर बातचीत करते हैं, वो उन लोग हमेशा गलत रहेंगे। Oh, God is speaking to me from the air. God is speaking. No. If God is not speaking to you from the Bible, then that is of the devil. लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे ऊपर से बात कर रहे हैं। नहीं, अगर परमेश्वर वचन से बात नहीं कर रहे हैं, वो शैतान बात कर रहा है, इसका मतलब। Even today, God speaks louder than before, and it is only through the word of God. और आज भी परमेश्वर पहले से भी ज्यादा बात करते हैं, और आज वचन से वो बात करते हैं। I may lie, you may lie, but God will never lie. चाहे हम झूठ कहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं कहेंगे। And God has written His holy word in the word of God for us and given it to us. और परमेश्वर ने अपने वचन को लिखा है बाइबल में, और हमें दिया गया है। So now Jesus has to be delivered in Bethlehem. और यीशु मसीह को इस समय बैतलहम में जन्म लेना है। Verse number 7. और वचन 7 में The Bible says, बाइबल बताती है, and she brought forth her firstborn son. और लिखा है, और वो अपना पहला लोटा पुत्र जनी। Why does the Bible say firstborn son? और पहला जन्म, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है? Why does that Bible say that? क्यों बाइबल ये कह रही है हमें? Firstborn son. पहला जो जन्म, It simply means if Mary was having firstborn son, then she must be having secondborn son, thirdborn son, fourthborn son. पहला लोटा अगर कहा गया है, इसका मतलब उसके पास दूसरे बच्चे भी होंगे और तीसरे बच्चे भी होंगे। Now, the Bible is not saying Mary gave birth to the only son. और बाइबल यहाँ पर नहीं कह रहे कि केवल एक ही संतान को जन्म दिया। The Bible is saying that Mary brought forth her firstborn son. और लिखा है कि मरियम ने पहला लोटा पुत्र को उसने जन्म दिया। Turn your Bible to Mark chapter 6. इस समय हम मार्कुस के 6 में हम जाएंगे, And I will tell you what the Bible tells about Mary and Joseph. और मैं बताऊंगा कि मरियम और यूसुफ के बारे में बाइबल क्या कहती है। When Jesus was conceived and was delivered, और जब यीशु मसीह पेट के अंदर और जब जन्म हुआ, Jesus was conceived by the Holy Ghost within the virgin's womb. और कुंवारी के पेट के अंदर यीशु मसीह का उत्पन्न हुआ। Which means Mary and Joseph did not have any physical relationship. इसका मतलब ये है कि मरियम और यूसुफ का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रहा उस समय। Joseph and Mary never slept together on the same bed until Jesus was delivered. जब तक ना यीशु का जन्म हुआ, तब तक उन लोग ने एक साथ नहीं सोया बिस्तर पर। Joseph never touched Mary sexually when she conceived Jesus and until Jesus was delivered. और जब तक ना यीशु का जन्म हुआ, तब तक यूसुफ ने मरियम को कभी भी नहीं छुआ। It was a holy child. और वो पवित्र संतान था। That which is in the womb of Mary, the virgin, it's a holy child. जो मरियम के गर्भ में था, जो संतान, वो पवित्र था। And now Jesus is delivered. और इस समय यीशु का पैदा हुआ। But then, because Jesus is the firstborn child, क्योंकि यीशु मसीह पहला संतान जो है, but then after Jesus was born, तो यीशु मसीह का जन्म होने के बाद Mary and Joseph lived a normal married life. और मरियम और यूसुफ एक साधारण जीवन जिया। Just like any husband and wife, they lived a normal married life. जिस प्रकार से एक साधारण पति पत्नी उन लोग नॉर्मल जीवन बिताते हैं, उस प्रकार से उन लोग भी जिया। Look at verse number 3 of Mark chapter 6. और मार्कुस अध्याय 6 वचन 3 में हम देखेंगे। Jesus is speaking great words to the people. और इस समय यहाँ पर यीशु कुछ शब्दों को उन लोग से बता रहे हैं। In verse number 2, the Bible says the people were astonished the way Jesus was speaking. और यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से यीशु बात कर रहे थे, लोग अचंभित हो चुके थे वहाँ पर। How come this man speaks some wonderful great things? How come he speaks like this? कैसे यह व्यक्ति इतना अच्छा मधुर बातों को कह सकते हैं? Verse number 3. और वचन 3 में, And they are all confounded and confused and surprised.
और लिखा है क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब से यहूदा और शमौन का भाई है? And they're asking these questions to one another. और लोग एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगे। I did not write the Bible, God wrote the Bible. और मैंने ये वचन को नहीं लिखा, परमेश्वर ने लिखा है। So you are supposed to obey what God says. तो आपको वही पालन करना जो प्रभु कहता है, Not what a pastor says. ये नहीं कि जो पास्टर कहता है, Not what a priest says. जो याजक वो कहता है वो नहीं, Not what a pastor say, a prophet says. या फिर क्या भविष्यद्वक्ता वो कहता है। You and I should obey what God says. हमें वही पालन करना जो प्रभु हमसे कहता है। Hallelujah. हालेलुया। God is saying in verse number 3. परमेश्वर यहाँ पर वचन 3 में कह रहा I है, mean, God is writing here in verse number 3 और वचन 3 में परमेश्वर यहाँ पर लिख रहा है what the people were discussing among them. जो लोग अपने आपस में उन लोग जो बातचीत कर रहे थे And तभी, they are saying in verse number 3, और वचन 3 में उन लोग आपस से कह रहे हैं, is not this the carpenter, क्या ये the वही son of Mary? क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र है? They are saying, this Jesus, is he not the carpenter, the son of Mary? उन लोग कह रहे कि या ये वही यीशु ने जो मरियम का पुत्र जो कारपेंटर है। See, they are not saying this is the son of Joseph, this is the son of Mary. उन लोग ये नहीं कह रहे कि यूसुफ का पुत्र, उन लोग कह रहे कि मरियम का पुत्र। Joseph has nothing to do with Jesus' birth. और यूसुफ का यहाँ पर कुछ काम नहीं यीशु के जन्म को लेकर। Is not this the carpenter, the son of Mary? और क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र? And look at that, Jesus had brothers and sisters also. और लिखा देखो यहाँ पर यीशु मसीह का भाई और बहनें भी थे, The brother of James और याकूब, and Joseph योसे, and of Judah यहूदा and Simon. और साइमन। And are not his sisters here with us? क्या उसकी बहनें उसके यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? And they were offended at him. और इसीलिए उन्होंने उसके विषय में So ठोकर खाई। after Jesus Christ was born, और यीशु मसीह का जन्म होने के बाद Mary and Joseph lived a normal married life. और मरियम और यूसुफ ने एक साधारण शादीशुदा जीवन को जिया। And so through Joseph and Mary's married life, और यूसुफ और मरियम के शादीशुदा जीवन के द्वारा they had children born. और उन लोग के पास बच्चे थे। They had 4 sons and daughters. उन लोग के पास 4 बेटे थे और बहुत सारी बेटियां थी। So Mary was virgin until she brought forth her first son. और मरियम कुंवारी थी जब तक ना पहला पुत्र को मरियम ने जन्म दिया। She was not always virgin. और वो हमेशा के लिए वो कुंवारी नहीं थी। After Jesus was born, यीशु मसीह का जन्म के बाद Joseph and Mary lived a normal life. और मरियम यूसुफ एक साधारण जीवन को जिया। And they brought forth many children into this और world. बाद में उन लोगों ने बहुत सारे बच्चों का पैदा किया। That's what the Bible says. और वही बाइबल हमें बताती You है। should not believe what man says और आपको ये विश्वास नहीं करना चाहिए तो पुरुष आपसे कहता है, or what a church says, और या फिर क्या कलीसिया आपसे कहती है, but believe what God says. लेकिन विश्वास करो वो जो परमेश्वर आपसे कहता है। Everybody okay with क्या that? सभी लोग सही हैं इसके बारे में? Amen. आमीन। And so in verse number 7, और वचन 7 में in Luke chapter 2, और लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 2, and she brought forth her firstborn son और वो अपना पहली लोटा पुत्र जनी and wrapped him in swaddling clothes और उसे कपड़े में लपेट कर and laid him in a manger. चरण में रखा। Why was Jesus born in a manger? क्यों यीशु मेंजे में जन्म लिया, You गौशाला see, में? they had to travel from Galilee to Bethlehem. उन लोगों को गलील से बेतलेहम तक उन लोगों को जाना था। They may not be knowing many people over there. उन लोगों को वहां पर लोगों को उन लोगों को नहीं पता था। There were not many friends living in that city. और उस शहर में उन लोग के दोस्त नहीं थे बहुत सारे। You cannot trust any strangers anytime. और कोई भी किसी को आप विश्वास नहीं कर सकते आसानी से। But Mary is so pregnant. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम पेट से है। She is so big now. She had to deliver the baby anytime. और उसको अभी कौन से भी टाइम को उसको बच्चे को जन्म देना था। But nobody was giving them a house to deliver the baby. लेकिन कोई भी उन लोगों को घर नहीं दे रहे थे बच्चा को जन्म देने के लिए। Come on, honestly, if anybody is pregnant, सोचो कोई भी अगर प्रेग्नेंट है तो 9 month pregnant, about to deliver, और 9 महीने से पेट से है और बच्चे को जन्म देने वाली है, and you do not know them, who they are, और आपको नहीं मालूम कि उन लोग कौन हैं, and they come to your house और लोग आपके घर में आते हैं and say, no, I have to deliver the baby, can you open your house for me? अगर लोग कहेंगे मुझे बच्चे को अभी जन्म देना है, क्या आप मेरे लिए घर को खोल सकते हैं? How many in this room, honestly, don't be a very religious spiritual people, how many of you honestly will open your bedroom and say, please use my room? कितने लोग कहेंगे मेरे घर को मैं अपने घर को खोलूंगा उन लोगों को बच्चे को जन्म देने के लिए? I will be thinking more time. और मैं उस समय मन ही मन में सोचूंगा क्या Thank करूं? God there are 2 people who will open their house for them. और धन्यवाद कि बहुत से लोग अपने घर को खोलेंगे, But I will be thinking, और लेकिन उस समय मैं सोचूंगा I'm like, maybe this inside bomb is there.
और शायद कुछ अंदर बॉम्ब रहेंगे शायद पेट के अंदर। Maybe inside drugs are there and they are going to put that in my house and call the police. लोगों के अंदर शायद ड्रग्स रहेंगे और पुलिस को शायद उन लोग बुला सकते हैं। I may be thinking many things in my mind. और मेरे मन में बहुत सारे चीजों को मैं सोचूंगा उस समय। During the last 8 months, there were like 3 guys, 3 men, women came to our doors and knocking at our doors. और ये 8 महीने के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आकर हमारे घर में खटखटाए। 3 times they came. और 3 बार उन लोगों ने आया। Many different times. और अलग अलग समय में उन लोग आए। And they said the collector has sent us to take information of everybody in this village. और उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने हमें भेजा था कि हम इंफॉर्मेशन को हर एक घरों से ले सके। And we want to take your information of everything about you. और तुम्हारे बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन हम लेना चाहेंगे। And I asked him, where is your identity card? और मैंने पूछा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड किधर है? And he said, well, I forgot to bring my identity और card. उन्होंने कहा कि मैं भूल गया मेरा आइडेंटिटी कार्ड को I लेकर said आने the के लिए। collector has sent you to take my information. और मैंने कहा कि कलेक्टर ने तुम्हें भेजा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। You want to know about my family, how many children you have, I have, you want to know how much money I have, you want to know my job, and you don't have your identity card? और आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास कितने बच्चे हैं और मेरे पास कितना पैसे और तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? Who sent you? तुम्हें किसने भेजा? No, collector from the North Goa has sent me. नहीं, नॉर्थ गोवा से कलेक्टर ने मुझे भेजा। I said, 1 second, come here close by. और मैंने कहा करीब आओ 1 सेकंड। And I took my phone और मैंने अपना फोन लिया and I took a picture with him, selfie. और उसके साथ मैंने एक सेल्फी लिया। Now, not because he was looking more handsome than me. इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। Simply because if he makes any problem, he'll be arrested and I'll be giving him to the police. इसका मतलब ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ताकि मैं उसको पुलिस में भेज सकूं। Then I made a video of him. I said, tell me what you want now. और उसका वीडियो मैंने लिया और कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो इस समय बताओ। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? Who sent you? तुम्हें किसने भेजा? And then he said, I'm getting late, I have to go. और मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। So I will not be opening up my house for strangers. और मैं दूसरे लोगों के लिए मैं घर को नहीं खोलूंगा। Now if she's a pregnant woman, I say, I have a car, I will take you to the hospital. अगर वो कहेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अपना कार में लेकर उन लोग को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। I will definitely help you. I'll take you to the hospital. और मैं उन लोग को मदद करूंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। Sometime 2 o'clock in the night, my people knock at my door. You do not know the stories. शायद आपको पता नहीं रहेंगे कि 2 बजे को रात को लोग खटखटाते हैं घर पे। And I'm like, what happened? Getting up from the night in a sleep. और क्या हो गया? रात को क्या हो गया? And I go outside and open the door and see, and there is a woman crying in the night. और बाहर जब मैं द्वार खोलता हूँ तो उस समय देखता हूँ कि एक औरत रो रही है। Oh, my daughter got fit. Can you help me take her to the hospital? और मेरी जो बच्ची है वो बीमार है इस समय, क्या आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? Sure, why not? और उसमें हाँ जरूर, क्यों नहीं। I'm a pastor. मैं पास्टर हूँ That's my neighbor. और वो मेरा पड़ोसी है, I have to help. मुझे मदद करना है। So I get my t-shirt on. और मैंने my टी शर्ट clothes पहना on. और कपड़े पहना मैंने। Not very happy to do it, but I want to do it. खुश नहीं हूँ मैं करने के लिए, लेकिन चलो करना चाहता हूँ। And then I take them to GMC. और उन लोगों को GMC में लेकर गया। I take them to other hospital wherever they want. और जहाँ पर उन लोग चाहते हैं जाने के लिए वहाँ पर लेके जाता हूँ। And these are in the middle of the nights when I'm deep sleeping. और ये रात के बीच में है जहाँ पर मैं घनी नींद में रहता हूँ। Simply because my neighbors know that I will not say no to them. क्योंकि उन लोग को पता है कि मैं उन लोग को मना नहीं करूंगा। Here what happened was, यहाँ पर क्या हुआ? they are going into उन Bethlehem. लोग बेथलेहम की ओर जा रहे थे। They know nobody. उन लोग किसी को नहीं पता है उन लोग And को। nobody is giving place. और कोई भी उन लोग को जगह नहीं दे रहा था। The Bible says, और बाइबल बताती है because there was no room for them in the inn. और क्योंकि उन लोग के लिए कोई जगह नहीं था वहाँ पर। There was no room in any places, no rented houses available. और वहाँ पर रेंटेड प्लेस वो जगह वगैरह नहीं था वहाँ All the पर। houses packed up. और सारे घर भर चुके थे। There's no room in the inn. और वहाँ पर उन लोग के लिए कोई जगह नहीं था। Lodgings are packed up. और सारे चीजें जो भर चुके थे। There is nobody. Nobody is willing to open the door and say, come on and I will help you. कोई भी उन लोग के लिए द्वार खोलकर उन लोग को मदद के लिए अंदर नहीं बुलाए। And so there was only option is उन लोग के पास एक ही ऑप्शन था, the manger, गौशाला, where the lambs and the sheep and the cows and the goats are kept. जहाँ पर भेड़ बकरी जन्म लेते हैं और वहाँ पर रखा जाते हैं। The God who created जो heaven and earth जो प्रभु जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, doesn't have a suit like me, और उसके पास मेरे जैसा सूट नहीं है, nor have a house like you. और आपके जैसा घर नहीं है। There's a manger और वहाँ पर एक गौशाला है, because there's no place in the inn. क्योंकि उसके वहाँ पर कोई जगह नहीं है। Christmas is a time to examine ourselves. और क्रिसमस ऐसा समय है जो हमें अपने आप को पहचानना है।
Have you any room for Jesus? क्या आपके पास कुछ जगह है यीशु के लिए? Do you have time for Jesus? क्या आपके पास यीशु के लिए समय है? Do you have a room for Jesus in your home? क्या आपके घर में यीशु के लिए जगह है A place where you spend time with Him? जहाँ पर आप उसके साथ समय बिताते हैं, That you talk to Him in prayer and read His word? जहाँ पर आप उसकी वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं? Have you any room? क्या आपके पास रूम है उसके लिए? There was no room for Jesus in वहाँ पर कोई Bethlehem. जगह नहीं था वहाँ पर यीशु के He लिए। was born in a manger. गौशाला में जन्म हुआ But उसका। even being born in a manger was a fulfillment of a prophecy. और मेंजे में जन्म लेना भी एक भविष्यवाणी की पूरी होने का एक वो था, वचन था। Because Jesus was not born as a king. क्योंकि यीशु मसीह एक राजा के जैसा जन्म नहीं हुआ, He was born as a lamb of God और वो परमेश्वर का मेमने जैसा जन्म हुआ that takes away the sins of the whole world. जो पूरे संसार के पाप को अलग करेगा। The lamb cannot be born in a hospital. और जो मेमने है वो कभी अस्पताल में जन्म नहीं The होता है, lamb cannot be born in a house. और मेमने का जन्म कभी घर में नहीं होता, Or a lamb cannot be born in a hotel. और मेमने का जन्म कभी होटल में नहीं होता। The lamb has to be born in a manger. और मेमने का जन्म केवल गौशाला में होना It is चाहिए। a fulfillment of the scriptures. और ये prophecy. भविष्यवाणी का वहाँ पर लिखा गया का पूरी हुआ। And so Jesus has to be born in Bethlehem in a manger. और यीशु मसीह को जन्म लेना था बेथलेहम में और गौशाला में, Because He's the Lamb of God that takes away the sins of the whole क्योंकि वो world. परमेश्वर का मेमने है जो पूरे संसार के पाप को हटाने के लिए। Christmas is a time to tell the world that Jesus is come to save you and He has shed the blood because He's the Lamb of God. और क्रिसमस ऐसा समय है जहाँ पर हमें लोगों को बताना है कि यीशु मसीह परमेश्वर जिन्होंने मनुष्य बनकर लहू बहाकर मर गए। I'm going to finish very soon. और बहुत ही जल्द यहाँ पर समाप्त The करेंगे। Bible says in verse number 8, और वचन 8 में यहाँ पर कह रहा है, and they were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone right about them, and they were sore afraid. और लिखा है उस देश में कि कितने गिर गिरे थे और रात के मैदान के रहकर उस पहाड़ देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। You know, और we all know about Apostle Paul. हम सभी लोगों को पता है पौलुस के बारे में, Oh, he's so powerful apostle. और बहुत ही शक्तिशाली प्रेरित था। On the way to Damascus, he saw the glory of God. The light shone right there. और दमिश्क की ओर जाते हुए उसको एक रोशनी दिखा। But we do not know the name of the shepherds here. लेकिन यहाँ पर हम शिपट के बारे में हमें नाम नहीं पता, Simple people. और साधारण लोग, But they also saw the same thing. लेकिन उन्होंने भी वही चीजों को देखा। The Lord is trying to tell you and me today. यीशु आज हम सभी उनसे बताना चाहते हैं, No matter what your status is, चाहे आपके उतार चढ़ाव कुछ you भी may हो, be an educated person like Apostle Paul, शायद पौलुस के जैसा एजुकेटेड पर्सन होंगे, or you may be poor and needy like the shepherds. या फिर आप गरीब और जरूरतमंद एक शेपर्ड जैसे होंगे। You may be known by name in your village and your city, शायद आपके गांव में आपको लोग जानते होंगे, or you may be unknown because you're a shepherd in your city. या फिर आप चरवाहे इसके लिए आपको कोई नहीं जानते होंगे। The Lord is trying to say everybody is equal in my sight. और यीशु कह रहा है कि मेरी नजरों में सभी लोग समान हैं, Whether you are a S shepherd or a S Saul. या फिर आप उस चरवाह के जैसे हैं या फिर पौलुस के जैसे हैं। The Bible says for me everybody is important और प्रभु कह रहा है मेरे लिए सब लोग जरूर है, because I come to die for the sins of the whole world. क्योंकि मैं पूरे संसार के लिए मरने के लिए आया हूँ। Verse number 10, और वचन 10 में, and the angel said unto them, fear not, for behold I bring you good tidings of great joy which shall be to all people. तो स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। You know, as a Christians, every day for us is the birth of Christ. और हम मसीहों के लिए हर दिन यीशु मसीह का जन्मदिन है। Every day is a comfort to our heart, fear not. और हर दिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि तुम डरो मत। But when it comes to Christmas season, लेकिन जब ये क्रिसमस के समय आता है, that's something that becomes fresh in our mind again. और वापस से एक ताजगी भरे होते हैं हमारे The जीवन angel में। of the Lord giving a message to everybody, और स्वर्गदूत सभी को एक संदेश दे रहा है fear not. कि डरो मत, I bring you good tidings. मैं तुम्हारे लिए एक समाचार लेकर आता It's a हूँ। time of good news. और एक अच्छा समाचार का समय है, It's about good news that the Savior is born among us. और ऐसा समाचार जो उद्धारकर्ता जन्म लेता है हमारे And it बीच brings में। great, not only good news, but great joy into our life. लेकिन बहुत ही बड़ी आनंद है हमारे बीच में, Not only for Christians, but for Hindus and for Muslims and for everybody in the world. केवल मसीहों के लिए नहीं लेकिन सारे धर्म के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए है। Christmas is not only for Christians, but for the whole world. क्रिसमस केवल मसीहों के लिए नहीं लेकिन पूरे संसार के लोगों Look के at लिए verse है। number 10. और वचन 10 में हम And the देखेंगे, angel said unto them, fear not. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि डरो मत, For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to
all people. क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। Jesus is not the God only to Christians. और यीशु मसीह केवल मसीहों का परमेश्वर नहीं है। Whether people agree or accept him or not, he is still the only true God of the चाहे world. लोग उसे ग्रहण करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर एक ही सच्चा खुदा है। The good news is given for all the people. और अच्छा समाचार ये है कि सभी संसार के लिए है। The great joy is made available for all the और people. बड़े आनंद जो है सब लोगों के लिए बनाया गया है। But it will only be applicable when you receive and believe him and accept him. लेकिन वो तभी केवल जब होंगे जब आप उसको ग्रहण करोगे तभी When you होंगे। trust Jesus Christ, you will have great joy. जब आप यीशु को विश्वास करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही आनंद होंगे। I finish here with verse number 12. और वचन 12 में हम समाप्त करेंगे। For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक कपड़े में लिपटा होगा और एक उद्धारकर्ता जन्म होगा यहाँ पर। The Bible speaks about a Savior is born. और बाइबल यहाँ पर बताते कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। And in my Bible, the word Savior is put in the capital S. और जो उद्धारकर्ता बड़े अक्षर में लिखा गया है यहाँ पर। The Bible tells that there is only one Savior. और बाइबल बताते कि केवल एक ही उद्धारकर्ता है। And God is the Savior. और परमेश्वर उद्धारकर्ता The है। Bible says there is no other Savior. और बाइबल बताते कि कोई अलग उद्धारकर्ता नहीं है। And that Savior became man and came into this और world. वो उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर इस संसार में आया। His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। And he is the Savior. और वो उद्धार करता He है। will save everybody from their sins. और उन लोगों के पापों से यीशु मसीह सबों को उद्धार देगा। Jesus did not die only for the church. और यीशु मसीह केवल कलीसिया के लिए नहीं मरा। He died for the church, but he also died for the sins of the whole world. कलीसिया के मरा लेकिन सभी संसार के लोगों के लिए मरा। He shed his blood for the church, but he shed his blood for the sins of the whole उसने world. कलीसिया के लिए लहू को बहाया लेकिन पूरे संसार के लिए भी उन्होंने बहाया है। That is the great news today. और वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आज। And people who receive this news will have great joy in their life. और जो लोग इस संदेश को ग्रहण करेंगे उन लोग के जीवन में बहुत ही आनंद होंगे। Today more people are running around to find healing from Jesus. और आज बहुत से लोग भाग रहे हैं कि यीशु से चंगाई पाने के लिए। Oh, if I can get healing. अगर मुझे चंगाई मिले तो। Oh, if my problems are solved. शायद मेरे अगर सारे समस्याएं सॉल्व होंगे तो। Don't run up to Jesus for healing and problem solved. और समस्याओं का समाधान के लिए यीशु के पास आप हमेशा मत भागिए। First, find out whether you are saved and all your sins are forgiven by Jesus पहले Christ. आपको ढूंढकर निकालना है कि आपके पाप क्षमा हुए या फिर नहीं, या फिर आप उद्धार पाए या फिर नहीं। If our sins are forgiven, then we are in the right hand of God. अगर हमारे पाप धुल चुके हैं तो हम परमेश्वर के हाथों में हैं। If you will seek Jesus for the forgiveness of sin and for your salvation, अगर आप- then all these things shall be added unto your अगर आप life. उद्धार के लिए, पाप के क्षमा के लिए यीशु को ढूंढेंगे तो सारी चीजें आपकी ओर आएंगे। First, you need to find Jesus in your life. पहले आपको यीशु को ढूंढना है आपके जीवन में। Don't find blessings. और आशीष के पीछे मत भागना। If you find blessings, you will die and go to hell. अगर आप आशीष के पीछे भागेंगे तो आप मरकर नरक को जाएंगे। There are too many people who run after Jesus for healing, they get healed and go to hell. बहुत से लोग यीशु के पीछे भागते हैं चंगाई के लिए और उन लोगों को चंगाई मिलती है और बाद में उन लोग नरक को जाते हैं। Jesus fed 20,000 people with 5 breads and 2 fishes. और यीशु ने 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा खिलाया। But when Jesus died on the cross of Calvary for their sin, nobody was there under the cross. लेकिन कलवरी क्रूस में जब यीशु मसीह मरा तब कोई भी क्रूस के यहाँ पर नीचे नहीं And थे। a lot of people rejected him and went to hell. बहुत से लोगों ने उनको इनकार कर नरक को गया। Finding Jesus for healing is not the right thing to do. अगर आप यीशु को ढूंढना चाहते हैं चंगाई के लिए, वो सही बात नहीं है। First and foremost, you need to understand this truth. सबसे पहले आपको इस सच्चाई को समझना है। Jesus did not come to heal you, he came to save you from sin first. परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए नहीं, लेकिन आपकी पाप से छुटकारा देने के लिए Now संसार में आया। Jesus will heal your sicknesses. शायद यीशु मसीह आपके रोग बीमार को चंगाई देगा, He will meet your needs and provide your needs. आपकी जरूरत को भी पूरा करेगा। But that's not the reason why Jesus came into this world. लेकिन वो मेन मकसद नहीं यीशु का आने का यहाँ पर। Jesus came into this world to save you from hell and forgive your sins यीशु forever. मसीह इसीलिए संसार में था कि वो आपको नर से छुटकारा दे सके, पापों से क्षमा दे सके। How do you go to heaven? How do you get your sins forgiven? कैसे आप स्वर्ग को जाते हैं, कैसे आपके पाप क्षमा होते हैं? First and foremost, you need to understand you are a sinner on the way to hell. पहली बार आपको समझना कि आप पापी, आप नर की ओर जा रहे हैं। You need to understand that no good works can save you. आपको समझना कि कोई भी अच्छे काम आपको उद्धार नहीं देगा। Your church will not save you, your pastor will not save you, your priest will not save you. आपके कलीसिया और आपके पासवान और याजक आपको उद्धार नहीं देगा। The Bible
Bible says your good works are like filthy rags. और लिखा है कि आपके जो अच्छे काम है गंदे कपड़े जैसे हैं, Your religious works are like faded and withered leaves. और आपके धर्म के जो काम है वो सूखे पत्ते जैसे हैं। You cannot earn salvation by your good works. आपके अच्छे काम के द्वारा आप कभी उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। You can be saved only by the grace and the mercy of God. आप केवल यीशु के अनुग्रह, उसके दया के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। Salvation is the gift of God that you cannot earn but can be received by faith. और जो उद्धार है परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है जो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप यीशु की ओर से प्राप्त कर First सकते हैं। and foremost, you need to understand, oh yes, I am a sinner on my way to hell. पहला को समझना कि हाँ मैं पापी नर की ओर जा रहा हूँ, Jesus came to save you from sin and save you from hell. और यीशु मसीह आपको पाप से और नर से बचाने के लिए आया है। And the Bible says you don't have to go to hell और बाइबल हमें बताते हैं कि हमें नरक को जाना नहीं है, because God doesn't want you to go to hell. क्योंकि प्रभु नहीं चाहते ताकि हम कोई भी नरक को जाए। That's why he became man and came into this world to save you from hell and forgive your sins. इसलिए वो मनुष्य बनकर इस संसार में और हमें पाप से छुटकारा देने के Do you लिए। know what Jesus did for you? क्या आपको पता है यीशु ने आपके लिए क्या किया? God became man. परमेश्वर ने मनुष्य बना, His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। He knows you're going to hell उसको पता है कि आप नरक को जा रहे हैं and he wants to snatch you out of hell. और आपको वो नरक से बचाना चाहते हैं। So he did this for you. और ये उसने आपके लिए ये किया, He took yours and my sins upon him उसने हम सभी के पापों को अपने ऊपर लिया, because he loves you. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। And he died on the cross by shedding his precious और blood. अपने लहू को बहाने के द्वारा क्रूस पे वो मर गया। Cutting goats and pigs and cows and chickens will not forgive your sins. बकरी, मुर्गी या फिर कुछ जानवरों को काटने से आपका पाप नहीं धुलेंगे, Going and jumping in the river will not forgive your sin. और नदी में जाकर कूद के आपका पाप क्षमा नहीं होंगे। The blood of Jesus Christ can make you whiter than snow today. लेकिन यीशु की लहू आपको बर्फ से भी ज्यादा सफेद बना सकता है, Because Jesus is God क्योंकि यीशु परमेश्वर है and he loves you. और वो आपसे प्यार करता है। This has energy and power inside it. इसके अंदर पावर है, एनर्जी है। That's why the voice is coming through the speaker. इसीलिए जो आवाज इसके द्वारा आ रहे हैं यहाँ पर, But it has no ability to forgive your sin. लेकिन इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं आपको पाप को क्षमा देने के लिए। And that's the same thing with idols. और वही मूर्तियों के द्वारा भी है। Idol, people keep it, but the idol cannot hear you. लोग मूर्ति रखते हैं, लेकिन जो मूर्ति आपको नहीं सुन सकते हैं। No, I'm not trying to offend anybody. Please try to understand my heart. मैं किसी को यहाँ पर डुबाना नहीं चाहता हूँ, बस आप समझे मुझे। It takes much love to tell you the truth. और ये प्यार है जो आपको मैं बताता हूँ। Give me that lampstand. Can this listen to me? क्या ये मुझे सुन सकता है? Did this make me? क्या ये इसने मुझे बनाया है? Who made this? इसको किसने बनाया? Who made this? किसने बनाया? Man made it. मनुष्य ने बनाया इसको। There's light inside it. और इसके अंदर एक लाइट है, Off. और इस समय ऑफ हो चुका है। Who made it? किसने बनाया? Who switched on and who switched it off? किसने ऑन किया और किसने ऑफ किया? I did it. मैंने किया, I am more powerful than this. और मैं इससे भी ज्यादा सामर्थ्यशाली हूँ। I made it with my hand. मैंने अपने हाथों से बनाया है, You're right. I'm making it. और मैं बना रहा हूँ इसको भी, I'm more powerful than this. और इससे भी ज्यादा मैं ताकतवर हूँ। It's the same thing about the idol. उसी प्रकार से मूर्तियों के साथ भी है। Man takes the mud from the field और लोग जमीन से मिट्टी को लेते हैं, or wood from the tree और या फिर पेड़ को लेते हैं, and fashions it with his talent और अपने टैलेंट्स के द्वारा उन लोग फैशन करते हैं, and paints it with a paint और पेंट करते हैं, and puts it in a shop. और दुकान में रखते हैं। 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया. He sells 50 it. रुपये 50 रुपए के उन लोग बेचते हैं, Well, his family runs. और उसका परिवार चलता है उसके द्वारा। But you bring it, लेकिन आप घर को लेकर आते हैं you put it on a corner, और आप कॉर्नर में रखते हैं, and what you bought it with your money, और जो आपने अपने पैसों से किया है, and what that man made with his hands, और जो मनुष्य ने उसके अपने हाथों से बनाया है, now you say that is a God. और आप कहते हैं कि वो परमेश्वर है, You भगवान are है। educated, stupid fools. और आप एक मूर्ख है, जो एजुकेटेड हैं आप। Does that make sense? Come on, we are educated people, हम right? सभी लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, सभी लोग हैं। We can think for ourselves. हम सोच सकते हैं इसके बारे में। We take the mud from the field. हम जमीन से मिट्टी को लेते हैं, We make the things. और हम चीजों को बनाते हैं, We paint it. और हम रंग लगाते हैं, We sell it. और हम बेच डालते हैं,
and then we make it a god. और हम उसको भगवान बना देते हैं। Is that a god? क्या वो भगवान है? Can that walk? क्या वो चल सकता है? Can that talk? क्या वो बात कर सकता है? Can that dance? क्या वो डांस कर सकता Can है? that heal you? क्या आपको चंगाई दे सकता है? No! नहीं, You made it. आपने बनाया है। The Bible says God made you and me. लेकिन बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है It says He's a living God. और वो जीवित परमेश्वर है He's so powerful. और बहुत सर्वशक्तिमान If है। you take all the muds of all the world, you still cannot make God from that अगर आप mud. पूरे संसार की मिट्टी को लेकर अगर आप बनाना चाहते हैं फिर भी आप भगवान को परमेश्वर को नहीं बना सकते He हैं। is so big. वो बहुत ही बड़ा है You can take the biggest rock of the world. और पूरे बिग चट्टान को आप ले सकते हैं You संसार में। cannot carry with your hand. आपके हाथों से आप उसको उठा नहीं सकते, God is bigger than that. लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े हैं। You look at the sun, right? आप सूरज को देखो, You can see the sun. आप सूरज को देख सकते How हैं। big the sun you can feel. This big. सूरज को आपको कितना लगता है, कितना बड़ा लगता है? इतना ही। Morning you see this much. और सुबह को आप जब देखते हैं इतना ही आपको दिखाई देता By है। the time it is sunset, you see this big. जब सूरज डूब जाता है आपको दिखता है इतना बड़ा, Right? है कि नहीं? When the sun is setting so big. जब सूरज उस समय उड़ा उस समय आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। You know the size of the earth? क्या आपको पता है सूरज की इस पृथ्वी की जो साइज को आपको पता है? The trillion size of the earth can be put inside that sun, somebody said. The scientists say. पृथ्वी की कहीं गुना जो पृथ्वी है उसको आप सूरज में रख सकते हैं। The sun is trillion times bigger than the earth. और जो सूरज है इस पृथ्वी से भी कहीं और गुना बड़ा है। And you can put trillion earth inside the sun and still the sun is big. और पृथ्वी का साइज का बहुत सारे पृथ्वी सूरज में आप डाल सकते हैं। Who made the sun? किसने सूरज को बनाया? So big. इतना बड़ा। And that God is bigger than the और sun. परमेश्वर सूरज से भी ज्यादा बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। And I serve a living God who is bigger than anything. और मैं उस जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ। My God has eyes, He can see. और मेरे परमेश्वर के पास आंख है जो He देख has सकता है। mouth, He can उसके talk. पास मुंह है बोल सकते He हैं। has hands, He can feel उसके it. पास हाथ है जान सकता है। He can touch you and heal और you. उसको आप छू सकते हो, आपको चंगाई दे सकता है। I cannot carry my God. और मैं अपने परमेश्वर को नहीं ले सकता हूँ। On the Facebook, I saw two people. फेसबुक में मैंने दो लोगों को देखा। When the big flood came in Hyderabad, जब बहुत ही बड़ी फ्लड आए हैं, one guy is carrying his God on the shoulder. और एक व्यक्ति अपने भगवान को अपने कंधे में लेकर जा रहे थे। Another guy is carrying his goddess on the shoulder. और एक दूसरे जो व्यक्ति अपने भगवान को भी लेकर जा रहे थे कंधे पे। Because of the flood. और वो बाढ़ की वजह से। But my Bible says, लेकिन मेरे बाइबल बताते हैं you don't have to carry me. आपको परमेश्वर को आपको कैरी करना जरूरी God नहीं है। says, I will carry परमेश्वर कह रहा है you. कि वो तुम्हें उठाएंगे। Can you carry your mother? क्या तुम अपने माँ को उठा सकते हो? She's heavier than you. वो आपसे भी ज्यादा भारी है। And why do you are thinking about carrying God? क्यों आपको लगता है कि आप परमेश्वर को कैरी कर सकते हैं? God is bigger than your mother and father. परमेश्वर आपके माँ पिताजी से भी ज्यादा बड़े हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is bigger than Kali, परमेश्वर काली से भी ज्यादा बड़ा है। the great Kali. जो खली है, God is bigger than whoever the biggest man in the world is. और इस संसार में जितने सारे बड़े लोग हैं उससे भी ज्यादा परमेश्वर अद्भुत है। Can you carry Carlton? क्या आप कार्लटन को उठा सकते हैं? Oh, you won't be able to carry आप Carlton. उसको उठा नहीं सकते हैं। You're thinking about carrying God. और आपको लगता है कि आप परमेश्वर को उठा सकते I हैं। mean, what's wrong with people? लोग आजकल क्या हो रहे हैं लोगों के मन में? The Bible says the devil has blinded their eyes और बाइबल बताया कि शैतान ने उन लोग की आंखों को अंधा बना दिया है, and blinded their उन लोग heart. के हृदय को भी अंधा बना दिया है। I'm presenting you the living God, holy God. और इस समय में जीवित परमेश्वर को आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस I'm समय not criticizing or accusing. I'm just laying the truth because it is the important truth that everybody should know. मैं बस आपको सच्चाई को बता रहा हूँ, किसी का मैं नीचे नहीं रख रहा हूँ इस समय। That Almighty God became man, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बना came into this और world इस संसार में आया because He loves you and me. कि वो हम सभी से प्यार करता है। While we were on the way to hell, जब हम नर की ओर जा रहे थे, He took yours and my sins upon Him. उसने हमारे सभी पापों को लिया अपने And He ऊपर died on the cross of Calvary और कालवरी की क्रूस में वो मर गया by shedding His precious अपने blood. लहू को बहाने के द्वारा। He died, वो मरा गया, was buried, उसको दफनाया गया, but on the third day, लेकिन तीसरा दिन
He rose again victoriously. और तीसरा दिन वापस वो जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know, we serve a living God, dear हम friends. जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। We don't serve a dumb, deaf, blind God. हम ऐसा गूंगा और अंधे भगवान की आराधना नहीं करते हैं। I don't worship a God that is made by my hand and carried by my hand and laid by my और hand. ऐसा भगवान की आराधना नहीं करता जो मैं अपने खुद के हाथ से बना सकता हूँ। I worship the God who made me and you. लेकिन मैं उसकी आराधना करता हूँ जिन्होंने हम सबों को बनाया है। And He is the only Savior. और वही एक ही उद्धार करता है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। When you will believe Jesus Christ जब आप यीशु को विश्वास करेंगे and say, Lord, और कहेंगे हे प्रभु, I'm sorry for my sins. मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। Forgive me, आप Lord. मुझे क्षमा कर पिता। I know you are the true God. मुझे पता है कि आप सच्चा परमेश्वर हैं। I've been into all these false things और एक गलत चीजों में मैं था because of ignorance. और इग्नोरेंस के वजह से। Now I turn away from that और इस समय मैं उन सारी चीजों से मैं मुड़ जाता हूँ and I turn to you, और Jesus, मैं आपकी ओर जाता हूँ प्रभु जी, because you are the true God क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर हैं and you became man और आपने मनुष्य बना and you took my sins upon और you आपने मेरे पापों को लिया अपने and you ऊपर died on the और cross आपने क्रूस पे मर गया by shedding your blood. अपने लहू को बहाने के You were द्वारा। buried आपको दफनाया गया, and you rose again on the third day. आपने तीसरा दिन वापस जी Oh उठा। God, I believe this truth. हे परमेश्वर, इस सच्चाई को मैं विश्वास Now करता I हूँ understand this. और मैं इस सच्चाई को समझता हूँ। Lord, I receive you. प्रभु यीशु मसीह से मैं आपको ग्रहण Please करता हूँ forgive me and make me your child. और आप मुझे क्षमा करके अपना संतान बनाइए। You know what the Bible says? आपको पता है बाइबल क्या बताते हैं? When you receive Jesus, जब यीशु को ग्रहण करते हैं He will make you His child. वो आपको अपना संतान बनाएंगे, All your sins will be forgiven. आपके सारे पाप क्षमा होंगे Now you will be a child of और God. आप इस समय परमेश्वर के संतान बन If जाएंगे। you're not saved this morning, अगर आप आज उद्धार नहीं पाए हैं God wants you to get saved today और प्रभु चाहते थे कि आज आप उद्धार पा सकें, because there's a good news come to all people क्योंकि ये अच्छा समाचार सभी के पास आ चुके हैं, because He's the only Savior. क्योंकि वो एक ही सच्चा उद्धार करता है। Don't think about tomorrow. कल के बारे में मत सोचिए, Today is the time for salvation. आज ही जो उद्धार का दिन है। Don't think about tonight. और आज की रात के बारे में मत सोचिए, Now is the time of salvation. और अभी उद्धार का समय है। Don't make your own God. आप अपना खुद का भगवान मत That बनाइए is an insult to the God who made you. और ये उस भगवान के लिए सर्वनाक की बात है जो आपको बनाया है। Don't go around calling other women your mother when you have a mother. अन्य स्त्रियों के पास जाकर आप अपने माँ मत बोलिए, क्योंकि आपके पास पहले से माँ है। You know, you have a mother and father, आपके पास माँ और पिताजी हैं, right? है कि नहीं? And they are alive. और उन लोग जीवित हैं And you put that on your house. और आपने उन लोग को घर पे रखा है वहाँ You say, पर that's my mommy and और आप daddy. कहते हैं कि वो मेरा माँ और पिताजी है। Then if I come and put garland on that photo, what will happen? और उस फोटो में अगर मैं फूल चढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अरे क्या हो गया? मेरा बाप मरा क्या? They will say, अरे what happened? My Right. father has died or what? You'll say, अरे my daddy is not dead. My parents are alive. उन लोग कहेंगे अरे मेरा पिताजी, वो माँ पिताजी उन लोग मरे नहीं हैं, उन लोग Why जीवित putting हैं। garland? क्यों फूल लगा रहे हो वहाँ पर? But then we put it for Jesus. लेकिन लोग आज फूल लगाते हैं यीशु के लिए। Jesus did not die. यीशु नहीं मरा, He's alive. वो जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। He doesn't want to be on the wall, crucified on the wall. वो दीवार में नहीं रहना चाहता है वहाँ जहाँ पर उसको क्रूसिफाइड किया गया है। He wants to be in your life. वो आपके जीवन में रहना चाहता है। He is not living inside a temple made with hands. और वो हाथों से बनाए हुए मंदिर के अंदर वो नहीं रहता। He wants to make your body the temple of वो God. आपके शरीर को उसका पवित्र मंदिर बनाना चाहते हैं। Trust Jesus today. यीशु के ऊपर आज विश्वास करिए। Amen. आमीन। He will forgive your sins. वो आपके पापों को क्षमा करेगा। He'll make you the child of वो God. आपको अपना संतान बनाएगा। He will give you peace and joy. और आपको शांति और आनंद को देगा आपके जीवन And में। when you become the child of God, जब उसके संतान बनेंगे you can ask what you want. और जो आप चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं उस समय। And God in His will for His glory will give it to you. और परमेश्वर अपनी इच्छाओं से और अपनी महिमा के लिए आपको वो पूरा करेगा। Amen. आमीन। Let's pray. आइए Every समय हम eyes closed, प्रार्थना every करें। head bowed. सभी लोग इस समय हम आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, today your word has been proclaimed to these wonderful people, O और God. आज इस लोगों के बीच में आपके वचन प्रचार हो चुके हैं प्रभु जी। O God of heaven, हे स्वर्गीय पिता, please speak to their heart. उन लोग के हृदय में आप बात कर प्रभु जी। Those who are saved, I pray that thou will strengthen their faith. जो लोग उद्धार पाए उन लोग को आप शक्ति से परिपूर्ण कर। Those who are not saved, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं पिता, I pray, Spirit of God, you will convict their heart मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग के हृदय में आप आज बोल प्रभु जी, and work in their life. उन लोग के हृदय में काम कर पिता। Please, O God of heaven, हाँ प्रभु जी,
May the word that is sown in the heart जो वचन इस समय हृदय में रखा गया है bear great fruits in their life. ताकि फल ला सके उन लोगों के जीवन में, Let not Satan come and snatch away that seed that is sown. ताकि जो बीज को बोया गया ताकि शैतान आकर ना छीन के ले जा सके। Lord, put an edge of protection around उन them. लोग के चारों ओर रक्षा करके रखे पिता। We give you all the glory and honor. हमको सरादर महिमा देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन।